All right. So the article is Anti-Maritime Piracy Bill. So I recently posted in the group that I think 4 days back, on 31st of Jan, President assent was given to this. So it is like the name is Maritime Anti-Piracy Act 2022. Okay. So so this article talks about the bill which was passed in both the houses, and it was recommended by standing committee, and it was originally like tabled in 2019. Okay, so let's see what is piracy. So this bill talks about the definition of piracy, and actually this definition is by UNCLOS. UNCLOS Article 101 defines piracy as any illegal acts of violence or detention or any act of depredation committed for private ends by the crew of passengers or of a private ship or a private aircraft on high seas against another ship or aircraft. So बहुत ही बड़ी definition है, but yeah, that is the crux is कि piracy is something which happens on high seas both by aircraft or private ship, and this is an act of depredation for private ends. So let's see why this piracy in 21st century is important, because there are three major choke points at which oh, sorry, let's not call it a choke point because we are also going to talk about Gulf of Guinea. So there are three major points in the ocean routes where this piracy happens on a large scale. First is Gulf of Guinea, then there is Gulf of Aden, then we have Strait of Malacca. So Gulf of Guinea has around 43% of attacks, Gulf of Aden has around 30% of attacks, and Strait of Malacca has around 19%. So these are most crucial points when it comes to piracy. Before going into the details of bill, let's see what was the need of anti-piracy bill. So we know that 90% of India's trade is through sea route, and उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स का जो भी हमें ट्रेड होता है, तो 80% of that trade of hydrocarbon is also from the sea route. So it's very crucial to have anti-piracy bill. So also, and at the same time, India is the signatory of UNCLOS. So UNCLOS, that is laws of sea. कोई बता सकता है कि कब हुआ था ये UNCLOS एंड कौन से कन्वेंशन में हुआ था? So it was in 1982. It happened in Montego Bay, Jamaica. Okay, and India joined in 1982 itself, but it ratified in 1995. Okay, so it took around 13 years to ratify. Okay, so and it was proposed by UNSC to recognize piracy as a crime, to have a universal jurisdiction. All right. So now, because of the growing menace of piracy along the Gulf of Aden, so which connects to Asia, Europe, and east coast of Africa, and यहाँ पे हमने देखा कि वहाँ around 30% of attacks happen in Gulf of Aden. So that's why it is very important for India. Also, at the same time, India doesn't have any specific law. Also, IPC or CRPC doesn't talk about it. We have sections armed robbery like section 392, and whenever something is caught by some pirates which are caught by Indian Navy or Coast Guards, they have their specific courts कि उनके jurisdiction में आते हैं वो. So there is no uniform law across for India. Okay, and also India's maritime sovereignty is delimited by the outer boundary of its territorial waters. जो हमने कल देखा था, it is 12 nautical miles from the coast. सो टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर जो भी है उसमें हमारा एक्ट कोई भी नहीं है. सो दैट्स वेयर देयर इज अ नीड. ऑलराइट. सो नाउ लेट्स सी ये एक्ट के अनुसार क्या है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्ट बिकॉज आई गॉट टू स्पेसिफिकेशन इन द एक्ट. सो इन द एक्ट, if you are attempting to commit piracy, या फिर so there are some words like if you are attempting to commit, or if you are aiding it, if you are abetting it, if you are conspiring it, or if you are procuring for the commission of the offense, so you will be allotted 10 years of imprisonment, or with fine, or with both. Second part is if you are organizing or directing others to participate, then you will get around 14 years with fine or with both. This act also talks about if there is a death happening in the because of your act of piracy.
the cause is the piracy and the death happens in that process, then we will be awarded mandatory death penalty. Okay. So now let's see what are the applicable regions. So since we know हमारे पास सिर्फ 12 nautical miles था initially, so this act has kind of broadened its perspective. It is also applicable to high seas, which includes EEZ and all waters beyond the jurisdiction of any other state. Okay, because laws of the seas के अनुसार we have around 5 zones. First is internal waters, then there is territorial waters, then contiguous zones, EEZ and high seas. ओके कल हमने देखा था क्या क्या मतलब लेंथ है उसका. ऑलराइट, देन वी हैव पायरेसी एंड एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस. सो एक्स्ट्राडाइट पता है हमें क्या होता है कि व्हेन लेट्स से इफ अ पर्सन हैज कमिटेड सम ऑफेंस एंड वी हैव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद दैट कंट्री जहाँ पे वो पर्सन अभी भाग के चला गया, देन by that treaty we can get that person back and then prosecute it according to our own laws or laws of the land. All right. Then this act also designates the court. So it will be formed by the central government in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, and it will specify certain courts as designated courts for speedy trial of offences of piracy. There will be also authorized personnel which are allowed to arrest and seize the property of the pirate ships. Also, one more point in UNCLOS is that if you catch if a country catches a pirate ships, okay, then that country will have all the assets of that ship. That is according to UNCLOS. Okay, and the disposing of the seized property, this will happen only by the order of. So it used to happen only by the court order. Now there will be a specific agency which will seize the property. So no court order will be required. So now let's see ये concerns क्या थे इस बिल के बारे में. First of all, the death penalty. So हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके रूलिंग में दिया था only in rarest of the rare cases में we will be like giving the death penalty because it violates the article 14 and 21. But there are some acts कि जिसके थ्रू पार्लियामेंट ने मैंडेटरी डेथ पेनल्टी भी अवॉर्ड की है. उसका एक एग्जांपल है कि SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 या प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989. तो इसके अंडर भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की है. So there is nothing wrong as such because Parliament has the authority to do that. Only thing is that कि Supreme Court का एक directive था ये. Then there is lack of clarity because so there is जैसे मैंने बोला कि there are two things. First you get 10 years and then in another case you get 14 years. So in first case you are attempting and second case you are just organizing. So there is no clear distinguishing factor between the two. One person can be involved in both the things. So how such person would be identified or defined or treated is not clearly mentioned in the bill. Right now, and then there is extradition difficulties. Let's say if that person has flew to other country and वहाँ भी वो accused है. Okay, so in that case in international laws, so it is very difficult. First that person will be tried in that country, then it will be coming back to our country, and if that person gets found guilty in that country, so हमारे पास वो आएगा ही नहीं because that person will be serving his sentence in that country. So that is a extradition difficulty. And finally, cyber attacks. This bill doesn't talk about potential cyber attacks on the vessels or ship. So yeah, this is about the key features of piracy, anti-piracy bill. Now let's see what were the measures taken to deal with piracy at sea. So since 2008, naval escort is provided by Indian naval ships to vessels of Indian origins and other countries in the Gulf of Aden. Okay, then we have interministerial group IMGO, which has been set up by the government under the Ministry of Shipping to deal with the hostage situation. We also have a committee of secretaries on the anti-piracy and hijacking of the seas under the chairmanship of Cabinet Secretary. We also have a contingency plan for dealing with piracy and hijacking of the merchant ships. There is a NMDA project, that is National Maritime Domain Awareness, which was approved by the government. Later on, we have the project which will subsume the existing naval information management and analysis system at Gurgaon, which
takes feeds from multiple sources ranging from the coastal radars to the satellite. Okay, so it's a technological advancement. And finally, it will function as the integrated intelligence grid to detect and thwart the threats emanating from the sea in real time. And it is expected to provide actionable intelligence on maritime threats. So these are the steps, these are the measures which are already in place. So I have one additional info that I wanted to share. All right. Okay, so I'm unable to find it, but I have one question. Okay, so in contiguous zone, there are 4 areas where a state can enforce law. So कोई बता सकता है वो कौन से 4 areas हैं? नहीं सर, बता दीजिए. Okay, so that is taxation, customs, pollution and immigration. So इन 4 areas में अगर आप contiguous zone में हो, तो that particular state can enforce laws on it. नाइस. सो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंडिया का जो ट्रेड है उसको. बिकॉज जो भी ट्रेड इस रास्ते से होता है, जो जहां पे हम देख रहे हैं कि आप मैप के थ्रू अगर आप इसको देखोगे तो इंडिया जो है वो येलो जोन में आ रहा है, यानी मीडियम जोन है कि यहाँ पे पायरेसी हो सकती है. ठीक है, तो एक मीडियम रिस्क है. तो ऑटोमेटिकली जब सामान ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके ऊपर एक प्रीमियम लगता है, और जितना ज्यादा रिस्की जोन होगा उतना ज्यादा प्रीमियम लगेगा. तो इंडिया का ऐसे मीडियम रिस्क जोन में होना ऑटोमेटिकली उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको बढ़ा देता है, एंड देयरफॉर इंडियाज प्रोडक्ट बिकम अनकॉम्पिटिटिव. तो ऐसे में एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑल द मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये गवर्नमेंट ने एंटी या मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल जो लाइक के आया है वो इस चीज को एनफोर्स करने में काम आएगा. So that was all about it. Next article पे चलते हैं. So और एक so the info that I wanted to share. So this timing of this bill is very crucial because recently जो International Maritime Organization है IMO, so इसने इंडियन ओशन का जो हाई रिस्क एरिया HRA डेजिग्नेशन है वो विड्रॉ कर लिया है on 1st of Jan 2023. So it reflects much more improved piracy situation in the region. At the same time, there are BIMCO, International Chamber of Shipping, then Intercargo, ये सारी जो चीजें हैं, they have continued to advise ship owners and operators to take precautionary measures when you are traveling through this Indian Ocean region. So ये जो high risk area वाला designation था Indian Ocean का, वो अभी remove कर दिया है. So because of so the timing is very important. ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं. स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग. सो अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है उसने एडवाइस किया है प्राइम मिनिस्टर को थ्रू अ वर्किंग पेपर टाइटल्ड स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग अ रीलुक एट स्ट्रैटेजी. सो नाम से पता लग रहा है कि बेसिकली हमारी जो स्ट्रैटेजी है स्मगलिंग और काउंटरफिटिंग को लेके उसको एक चेंज करने की जरूरत है. तो स्मगलिंग होता क्या है, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया गया है. A custom offense consisting in movement of goods across from a custom frontier in a clandestine manner. Clandestine मतलब छुपा के किसी सामान को एक कस्टम बॉर्डर से दूसरी कस्टम बॉर्डर पे ले जाया जा रहा है विद अल्टीमेट एम है ताकि उस पे जो कस्टम कंट्रोल है उससे इवेड कर सके, यानी उस पे कस्टम जो है वो ना लगे, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो और चुपके से उसे एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर में पार करा दिया जाए. सो इन इंडिया कस्टम एक्ट हम लोगों ने लागू कर रखा है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से डील करता है. नेक्स्ट काउंटरफिटिंग है. तो काउंटरफिटिंग हमारे आईपीसी का सेक्शन 28 में डिफाइन है. काउंटरफिट मतलब बोल सकते हैं कि एक अगर कोई पर्सन है तो ऐसा पर्सन जो किसी और को रिजेंबल करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है कि डिसेप्शन कर सके, वो किसी को डिसीव कर सके. ठीक है, तो ये स्मगलिंग और काउंटरफिटिंग का बेसिक सा डेफिनेशन है. नेक्स्ट बहुत सारे और लॉज हैं जो स्मगलिंग और काउंटरफिटिंग को अप्लाई होते हैं. जब भी हम स्मगलिंग काउंटरफिटिंग से रिलेटेड कोई भी क्राइम देखेंगे तो वहां पे प्लेथोरा ऑफ एक्ट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड. जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, जब जानवरों की तस्करी की जाती है, स्मगलिंग की जाती है, तब वहां पे WPA लग जाता है. फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, NDPS नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट. तो जैसे कि आप जानते हो सबसे ज्यादा स्मगलिंग शायद ड्रग्स की ही होती है. फिर आर्म्स एक्ट है,
फॉरेन ट्रेड एक्ट है एंड लास्टली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। तो ये कुछ और एक्ट्स है जो लगते हैं जब भी ये इस टाइप का क्राइम होता है, और भी इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो डिफरेंट टाइप के एक्ट्स, तो वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक में कॉमनली स्मगल्ड आइटम्स दिए हुए हैं, तो ये तो आई थिंक सब लोग जानती है, तो इस पर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले काउंटरफिट प्रोडक्ट्स का इफेक्ट देखते हैं। जनरली काउंटरफिट प्रोडक्ट्स से जो इम्पैक्ट होने वाले सेक्टर्स है उसमें ड्रग्स, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, मूवीज, बुक्स वगैरह ये आ जाती है। ठीक है, अब इन काउंटरफिट से बहुत लार्ज स्केल लॉस होता है, तो स्पेसिफिक जो लॉस कितना हो रहा है उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को जाना हो तो यहाँ पे देख सकता है। हम अभी आगे चलते हैं और देखते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहला, ये स्मगलिंग और काउंटरफिटिंग हो क्यों रही है? बिकॉज एक ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड है। लोग चाहते हैं कि उन्हें सामान जो है थोड़ा सा सस्ते में मिल जाए, तो उन पेक्यूनरी गेन्स के चक्कर में वो कई बार डुप्लीकेट सामान खरीद लेते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि एडिडास के जो शूज हैं वो दिल्ली के अंदर सस्ते मिल रहे हैं, या और कोई भी ब्रांड है जो आपको सस्ता मिल रहा है। तो सस्ता मिलने का रीजन ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो काउंटरफिट प्रोडक्ट है, इसलिए आपको सस्ता मिल रहा है। सो लोग उस सस्ते सामान के चक्कर में काउंटरफिट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट, कई बार ये जो स्मगल गुड्स है ये एडिक्टिव होते हैं नेचर में, और लोग उससे एडिक्टेड हो जाते हैं और इसलिए उसकी डिमांड बढ़ने जाती है। नेक्स्ट, लकूना है काउंटरिंग इन द सप्लाई। हम जो है जो सप्लाई आ रही है, चाहे वो इंडिया के बाहर से हो या विद इन इंडिया, उसको रोक पाने में कहीं ना कहीं असक्षम है। तो उसके लिए रीजन क्या है? जैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसका एक इशू ये होता है कि जनरली काउंटरफिट और स्मगलिंग जो है ये विक्टिमलेस क्राइम लगते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपने किसी के साथ गलत किया है। जैसे लेट्स से किसी ने पायरेटेड मूवी देखी, तो उन्हें लगता नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया, बिकॉज कोई डायरेक्टली विक्टिम नजर नहीं आता उन्हें। तो इस कारण लोगों को पता भी नहीं लगता और वो अनइंटेंशनली या बिना ज्यादा सोचे समझे इस टाइप का क्राइम कर जा रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन टेक्निक है। तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि एक केस आया था जहां पे जो पश्मीना शॉल जो हमारे जम्मू कश्मीर का एक जीआई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल जो ब्यूरो है उसने रेड डाल दी थी, बिकॉज उसमें शहतूश जो एक एंडेंजर्ड डियर होता है कॉल्ड चीरू, उसका जो गार्ड हेयर होता है उसको शहतूश बोलते हैं, तो शहतूश उसके अंदर मिल गया था। सो रीजन क्या था उसको मिलने का? बिकॉज जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स वो लोग यूज कर रहे थे वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो वाले, उसकी वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि जो हेयर उसके पास है वो क्या पश्मीना गोट का है या फिर वो एंडेंजर्ड चीरू एंटीलोप का। तो ये जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन टेक्निक है इनको इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड मिसयूज ऑफ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो जनरली क्या करते हैं, जब भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे चाइना से हम लोगों ने कपड़े के ऊपर बैन है, तो क्या करते हैं उसको किसी और नाम के अंडर इंपोर्ट करवा देते हैं उस कपड़े को। तो ऐसे में ये जो डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है इनका भी फायदा उठा लेते हैं ये लोग। जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, कि भेज कुछ रहे हैं और उसका नाम कुछ और डाल दिया और एक्सपोर्ट करवा दिया, तो गवर्नमेंट से उसमें पैसा भी उठा रहे हैं। नेक्स्ट, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पोर्ट्स, वही सेम चीज कि मंगा कुछ रहे, सपोज कोई बैंड प्रोडक्ट है उसको मंगा रहे हैं इंडिया में लेकिन कुछ और नाम से। जैसे ड्रोन इंडिया में इंपोर्ट करना बैन है, तो क्या करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के नाम से, मतलब बेसिक कुछ आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक के, वो बोलकर इंडिया में मंगा लिया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ये काउंटरफिट या जो प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग होती है। नेक्स्ट, राइजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो ये क्रिप्टो करेंसी एसेट आने से या जो डार्क नेट साइट्स है जहां पे आप ऐसे इलीगल सामान को एक्सेस कर सकते हो, एक तरीके से मार्केट प्लेस की तरह वर्क करता है ये। तो यहाँ पे आप इजीली चीजें एक्वायर कर सकते हो, तो वो एक इशू है। नेक्स्ट, अब इफेक्ट क्या होता है स्मगलिंग और काउंटरफिटिंग का? सो फिक्की का ये एक रिपोर्ट है जिसमें ऐसा बोला गया है कि काउंटरफिट और स्मगलिंग से
इंडिया को 1.17 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, स्पेशली इन द 5 की इंडस्ट्रीज। अभी 5 की इंडस्ट्री क्या है? टेक्सटाइल, टबैको प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल्स। नेक्स्ट, एडिशनल कॉस्ट है। गवर्नमेंट इनकर्स एडिशनल कॉस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग एंटी काउंटरफिटिंग मेजर्स। ठीक है, अब कोई भी काउंटरफिट ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए लोगों को डिप्लॉय करना पड़ता है, पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट का पैसा भी खर्च हो रहा है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि आप कस्टम्स में इन सब चीजों को छुपा कर ले जा रहे हो विदाउट द गवर्नमेंट नोइंग अबाउट इट, तो आप एक तरीके से गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उसको भी लॉस कर रहे हो। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ जॉब्स एंड बिजनेसेस। तो फिकी का ये रिपोर्ट है, अगर हम ये स्मगलिंग सिर्फ केवल उन 5 इंडस्ट्रीज में रोक दे तो हम क्रिएट कर सकते हैं एडिशनल जॉब्स बाय 16 lakhs। सो ये एक अनदर चैलेंज है। नेक्स्ट, हार्म टू एनवायरमेंट। जनरली ये जो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स होते हैं ये सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत सारा वेस्ट का डिस्पोजल कर देते हैं एनवायरमेंट में डायरेक्टली, जो कि हार्म करता है एनवायरमेंट को। लास्टली, इसी से रिलेटेड पॉइंट हेल्थ इश्यूज है। अगेन, ये जो काउंटरफिटिंग या जो स्मगल प्रोडक्ट्स है ये प्रॉपर स्टैंडर्ड के नहीं होते या सब स्टैंडर्ड आइटम होते हैं। ठीक है, सो हेल्थ इश्यूज तो आप जानते हो क्योंकि एडिक्टिव भी होते हैं ये, और इनसे वही सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखा जाता, ऐसे में ये डायरेक्टली हैजार्डियस हो सकते हैं हमारी हेल्थ को, और फिर एक विशियस साइकिल जनरेट हो सकती है, बिकॉज इससे आने वाला जो ह्यूज प्रॉफिट है दिस में ड्राइव द यूथ टुवर्ड्स दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस, और क्राइम सिंडिकेट फॉर्म कर सकता है ऑफ सच इलीगल एक्टिविटीज। सो ये कुछ इश्यूज थे इससे एसोसिएटेड। आगे जाने से पहले कुछ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हुए हैं टू काउंटर स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग। तो इसमें कुछ एजेंसीज है जो हमें पता होना चाहिए। पहला है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, which is constituted as an apex anti-smuggling intelligence and investigation agency। तो कोई बता सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? कोई गेस? कॉमर्स एंड ट्रेड? नहीं, ये फाइनेंस के अंडर है। नेक्स्ट, ऑटोमेशन ऑफ कस्टम्स क्लियरेंसेस एट बॉर्डर एंड इंडक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एंट्री। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो कि फॉर द पुलिस ऑफिशियल ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश, ताकि उनको भी सेंसिटाइज किया जा सके अबाउट स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग ऑफ इंडियन करेंसी। नेक्स्ट, टेरर फंडिंग और फेक करेंसी सेल है जो एस्टैब्लिश किया गया रिसेंटली अंडर NIA, जो स्पेसिफिकली जो फेक करेंसीज है उनको उनसे रिलेटेड जो भी क्राइम है उनको ट्रैक करता है और कर्ब करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, अभी जो UAPA को अमेंड किया गया था उसमें भी बहुत सारे प्रोविजन डाले गए हैं काउंटरफिट करेंसी, आर्म्स एक्ट की स्मगलिंग, इन सब को लेके। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स डिप्लॉयड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड। पहला, काउंटर करो जो इंटरनल डिमांड है उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर क्राइम पैदा हो रहा है तो इसकी डिमांड है, इसलिए ये पैदा हो रहा है। तो पहले जहां पे भी इलीगल ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह वर्क कर रहे हैं, उन एरियाज पे हमें कर्ब करने की जरूरत है। जैसे हम फ्लाइंग स्क्वाड्स बना सकते हैं कस्टम्स की, NCB की, पुलिस की, ताकि वो जो ड्रग्स यूसेज होता है होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में उनको कर्ब कर सके। नेक्स्ट, पब्लिक ऑफिशियल एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स नीड टू वर्क मोर कोलैबोरेटिवली। इनके आपस में एक सिंक्रोनिज्म होना चाहिए so that they can build awareness about significant impact of counterfeiting and smuggling। So companies भी चला सकते हैं, जैसे आजकल कंपनीज QR कोड वाले आइटम्स चलाती हैं कि ताकि जो फेक आइटम है उसको पता लगाया जा सके। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ एंड पॉलिसी ऑन काउंटरफीटिंग गुड्स। एक यूनिफॉर्म लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जहां पे एक डेडिकेटेड रिड्रेसल मैकेनिज्म हो और उसका टाइम बाउंड डिस्पोजल भी हो, जिससे कि जो भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको भी डायरेक्टिव मिल सके कि सर्टेन आइटम जो है काउंटरफिट हो रहा है और इसके लिए मेजर लेने की जरूरत है। नेक्स्ट, कैपेसिटी एनहांसमेंट ऑफ द एनफोर्समेंट एजेंसीज सो दैट दे कैन इफेक्टिवली एनफोर्स सच लॉज। तो एक 2-pronged अप्रोच है,
जहां पे हम एरिया एक्सपर्ट जैसे कि ड्रग एक्सपर्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हो गया, इनको डोमेन एक्सपर्ट के साथ मर्ज कर सकते हैं। जैसे डोमेन एक्सपर्ट कौन हो गया, बॉर्डर के ऊपर कोई आर्मी ऑफिसर है जो कि अ, ये चेकिंग वगैरह कर रहा है, तो इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इससे हम उस स्पेसिफिक एरिया में होने वाले क्राइम को ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि जनरली होता है सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती किसी वाइल्ड लाइफ की या किसी ड्रग की। तो अगर दोनों डोमेन एक्सपर्ट वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट ये होगा कि हम इफेक्टिव एनफोर्समेंट कर पाएंगे लॉस की। नेक्स्ट, काउंटरिंग द प्रेजेंस ऑफ काउंटरफीट एंड फेक प्रोडक्ट। तो ये जो पूरा सप्लाई चेन है इसको एक तरीके से ठीक करने की जरूरत है। जैसे एक रोबस्ट नो योर सप्लायर या नो योर कस्टमर प्रोग्राम चला सकते हैं, जिसके थ्रू पूरे जो सप्लाई चेन है उसके अंदर ये इंश्योर किया जा सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो एक लेजिटिमेट मीन्स के थ्रू एक्वायर हुआ है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं कोट करता हूँ। पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, डायमंड से रिलेटेड एक ऐसा कन्वेंशन है या एक ऐसा सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी डायमंड जो है किसी वॉर ट्रॉन कंट्री से या किसी ह्यूमन राइट वॉलेशन से नहीं आया। किसी को आइडिया है ऐसे किसी सर्टिफिकेट के बारे में? Is it ठीक है, natural diamond? नहीं नहीं, नेचुरल डायमंड इज डिफरेंट थिंग। नेचुरल डायमंड तो हर डायमंड जो, हाँ कोई बात नहीं। सो देखो, एक प्रोसेस है किम्बरले सर्टिफिकेशन प्रोसेस। आपने कभी सुना होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा इसके यूपीएससी का। तो किम्बरले सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है ये बेसिकली इसके बारे में है कि जो डायमंड प्रोक्योर किया गया है ये एक लेजिटिमेट मींस के थ्रू प्रोक्योर किया गया। जनरली क्या होता है, ये डायमंड जो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आपको मिल जाते हैं, एंड वहां पे जनरली ह्यूमन राइट वॉलेशन करके इन डायमंड्स को सस्ते में प्रोक्योर किया जाता है और फिर लेजिटिमेट सप्लाई चेन के अंदर इनका पार्ट बना दिया जाता है। तो वहां से अफ्रीका से निकल के वो डायमंड डेवलप कंट्रीज में चला जाता है वहां के ज्वेलर्स के पास, और वो अच्छा पैसा कमाते हैं उससे। और ये पैसा जो कमा रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के खून पसीने के, खून भी मतलब ज्यादातर खून ही होता है उसके अंदर, बिकॉज वॉर टोन कंट्रीज में ह्यूमन राइट वॉलेशन के थ्रू उस चीज को प्रोक्योर किया जाता है। एक लियोनार्डो डी कैप्रियो की भी बहुत शानदार मूवी है इस पे, ब्लड डायमंड करके, वो देख लेना। लास्ट में आप वो इसी चीज के बारे में बात करता है। So with that, moving on to the next topic, blacklisting of offender and easily accessible database। तो एक नेशनल डेटाबेस बना सकते हैं जितने भी ऑफेंडर्स है जो कि रेगुलरली इस टाइप के काम करते हैं, ताकि एक होलिस्टिकली उनसे रिलेटेड जो नेटवर्क है उसको अनकवर किया जा सके। नेक्स्ट, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखो ताकि जो ऑफेंडर्स हैं इस चीज को बार बार रिपीट ना कर पाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द काउंटरफीटिंग एंड स्मगलिंग पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है इस पार्ट में तो पूछ सकता है। ठीक है, आई गेस देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। दीप्ति सर मैम। इसमें गोल्डन ट्रायंगल और क्रिसेंट का डाल सकते हैं क्या पॉइंट? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, बिकॉज ड्रग्स की जब भी आप स्मगलिंग की बात करोगे तो इंडिया स्टैंड्स एज अ ट्रांजिट या एज अ हब बिटवीन द गोल्डन क्रिसेंट एंड द गोल्डन ट्रायंगल। तो या वो जरूर आता है इसमें। ठीक है, तो मैम आप कंटिन्यू कीजिए आगे। Right, sir. So next topic is lone wolf terrorism. So experts have raised concerns about growing threat of lone wolf terrorism. Violent terror attacks by lone wolf terrorism का definition ये है, violent terror attacks by extremist individuals acting upon their radicalized belief is termed as lone wolf terrorism. This is influenced and inspired by a specific terrorist organization and ideology or operate within a particular social atmosphere. तो प्रॉपर टेरर ग्रुप और इनमें सिमिलैरिटी बस यही है कि ये लोग टेरर ग्रुप से इंस्पायर्ड हैं। ये डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। जैसे ये ऑर्गेनाइज 9/11 और 26/11 के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स में प्लानिंग होती है, कम्युनिकेशन, दे हैव मनी ट्रांसफर्स एंड
लेकिन इसमें लोन वुल्फ टेररिज्म में दे आर यूजुअली स्मॉल स्केल अटैक्स, इजी टू बी कैरिड, एंड इसके लिए कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए. So this lone wolf terrorism ranges from threatening and intimidating people to indiscriminate shootings, vehicle rammings, stabbing and suicide bombings. Lone wolf terror attacks have become a grave threat. तो challenges क्या है इसमें? एक तो unpredictability है, because of which counter-terrorism agencies, police and intelligence organization have found it challenging to tackle. And the use of internet, radicalization, it plays a critical role in making the lone wolf terrorism. It mostly happens online, and or anonymity is also one more feature to communicate. मतलब एक तो anonymity maintain करते हैं. Then easy to carry out. Such attacks are becoming logistically simple. And lone wolf इसमें copycat behavior भी, like it inspires copycat behavior and become role models for other alienated youngsters and often invite bandwagon attacks. Copycat behavior and bandwagon मतलब उसी इसमें you will find a series of attacks happening one after the other. ठीक है. So and let's see what makes India vulnerable to lone wolf attacks. So let's go to the infographic. ठीक है. Possibility of Pakistan using it as a tool to advance its state-sponsored terrorism against India, and groups like IS visualize India's democratic, secular and open social fabric as a threat to Islamic Caliphate. Heavy concentration of people in public areas offers large number of potential targets. Fast growing population, especially youth, with access to mass media and social media, open limitless avenues of unrestrained radical propaganda. इसमें मतलब मुझे कुछ इतना important नहीं लगा. Prelims related. You can use these for mains. फिर role of technology in amplifying terrorism ये देख लेते हैं. तो social media, estimates suggest in 2016 social media played a role in 90% of radicalization cases. And 3D printing इसमें मतलब they can print parts of guns. And autonomous vehicles, जैसे turning vehicles into a remote control weapon. And then drones can be used to attack. Drones can carry explosives and they can be used for attacks. And surveillance or reconnaissance missions के लिए भी use कर सकते हैं drones. And artificial intelligence enhance cyber attacks and digital disinformation campaigns. मतलब attack से पहले ही they can disinform. And then there is metaverse. तो preemptive reconnaissance missions in virtual world. वही like before attack you can disable the मतलब क्या इंटरनेट हो या फिर लाइक जो सर्वेलेंस सिस्टम है सब कुछ डिसेबल कर सकते हैं वैसे. सो दे कैन यूज मेटावर्स एंड डू दीज थिंग्स. एंड ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. सो स्टेप्स टेकन बाय इंडिया. सो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 UAPA सब जानते हैं. तो इट प्रोवाइड स्पेशल प्रोसीजर्स टू डील विद टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड इट this establishment of NIA, which is a functioning as counter-terrorism law enforcement agency in the country. तो NIA में UAPA भी like NIA has works on several other acts. मतलब state will ask the center to give permission to transfer certain cases to NIA. So that is how NIA investigates. And then there is National Intelligence Grid or NAT Grid that aims to provide a cutting edge technologies to enhance India's counter-terror capabilities. जो data different counter-terrorist agencies के पास है सब इकट्ठा करके NAT Grid के पास मिलेगा. So that is what it is doing. India's counter-terror it provides a cutting edge technology.
and establishment of counter-terrorism and counter-radicalization division and cyber and security division in Ministry of Home Affairs. And National Security Council Secretariat has been given a constitutional and legal mandate to develop a new counter-radicalization program. तो इसमें important point यही है, like we have to know NSA में NSC में members कौन कौन हो. हाँ, then there is difficulties in obtaining weapons. इंडिया में यही पॉजिटिव पॉइंट है कि यूएस में जितना इजी है गन लाइसेंस लेना और गन्स ऑब्टेन करना, इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट है. एंड स्टेट सुपरवाइज्ड काउंसलिंग इनिशिएटिव्स लाइक केरला's ऑपरेशन पिजन. तो देन पॉलिसी मेजर्स, diversify India's counter-terrorism capabilities and develop a robust national counter-terrorism doctrine addressing the different nuances of the terrorism. Invest in understanding of new developing threats coming from intersection of technology, nationalism, and counter-terrorism. And then capacity building measures, technical intelligence, strong technical intelligence capacities like social media and cyberspace monitoring, contingency plans by intelligence and counter-terrorism structures, need for specialized police teams to be trained, equipped, and organized in every state to act as first responders. And de-radicalization and counter-radicalization strategies. इसमें India should undertake regular revision and tightening of laws. Hardened ideologies must be prosecuted under counter-terrorism laws. And there's a need to expand on community engagement to de-radicalize and counter-radicalize efforts. And helpline should be created and manned by professional counselors and psychologists. इसमें NGOs can also be supported by the state. And strengthening international cooperation, transitional nature. So strengthening coalition of willing to improve intelligence sharing mechanisms, reduce time for processing information, and strengthen countermeasures for finance of terrorism. So इसमें मुझे ज़्यादा important ऐसा कुछ नहीं लगा. Only thing is UAPA में recent advancements क्या है और NIA के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, NatGrid and NSC. तो रिसेंटली देखो, हाँ, रिसेंटली लोन वुल्फ टेररिज्म अटैक जो है अक्रॉस द वर्ल्ड राइज पे है, और इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये एक नया डेवलपिंग सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी इसके बारे में सब गिवन है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूज़ इन शॉर्ट. ठीक है, नहीं आए एज ऑलवेज, कोई बात नहीं. तो अग्नि 5, तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज जो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है कैरिड आउट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द मिसाइल फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा. सो एज यू नो, पहले व्हीलर आइलैंड था जिसका नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया. ये उड़ीसा की कोस्ट के ऊपर है. एंड वहां पे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस कमांड है, जो कि पूरा जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है हमारी उनको कंट्रोल करता है, उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया अग्नि 5 मिसाइल को. सो दिस SFC इज अ ट्राई सर्विसेज फॉर्मेशन दैट मैनेजेस एडमिनिस्टर ऑल स्ट्रेटेजिक एसेट. सो ट्राई सर्विस का मतलब है इसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के जो रिसोर्सेज हैं या लोग हैं वो एक साथ काम करते हैं स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के अंदर. तो जनरली जब भी हम आर्म फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से या उतना डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन है भी नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. वो है हमारी जो पूरा स्ट्रैटेजिक एसेट मतलब ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनको मैनेज करने का काम करते हैं. तो अगर इंडिया के ऊपर ऐसा कभी कोई हमला हो जाए तो वहां पे उसको रिस्पॉन्ड जो है वो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ही करेगा. ठीक है. सो इट फॉल्स इनटू द परव्यू ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, एंड दिस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हैज टू काउंसिल. पहला एक पॉलिटिकल काउंसिल जो कि हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड दूसरा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. तो ये थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखना कि एक पॉलिटिकल विंग रहेगा और एक एग्जीक्यूटिव विंग रहेगा. जो पॉलिटिकल विंग है
उसमें हमारे जो पॉलिटिकल हेड है देश के, पीएम, वो रहेंगे, और एग्जीक्यूटिव में एनएसए रहेंगे। सो अग्नि 5 मिसाइल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वॉर कर सकती है। दिस अग्नि 5 इज अ न्यूक्लियर कैपेबल missile that can carry out surface to surface operation. This is a ballistic missile. So ballistic missile, as you know, एक parabolic path जो है वो travel करती है. These are indigenously developed by DRDO under the Integrated Guided Missile Development Program. So as you know, Integrated Guided Missile Development Program जो था, ये APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फेमसली जाने जाते हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम को हेड किया था। एंड इस दौरान 5 मिसाइल्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था या डेवलपमेंट किया गया था। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। तो नाम से ही पता लग जाना चाहिए काम क्या क्या है। तो पृथ्वी जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अग्नि भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, त्रिशूल जो थी अब डिकमीशन कर दी गई है। नाग कोई बता सकता है स्पेसिफिकली नाग किस चीज के लिए मिसाइल है? एंटी टैंक। व्हाट इज द वेरी गुड, एंटी टैंक। रिसेंटली इसके 2 वेरिएंट्स भी आए हैं नाग के, जो न्यूज में थे काफी बार, उसके बारे में बता सकते हो? दो वेरिएंट थे, एक हेलीकॉप्टर माउंटेड। ग्रीक, नहीं, ग्रीक गॉड ऐसा लाइक नाम से कुछ नाम है, मतलब थोड़ा अच्छा। मिलता जुलता ग्रीक गॉड से, बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हेलेना एंड ध्रुव अस्त्र। नहीं, ध्रुव अस्त्र नहीं था। हेलिना सही है, हेलिना वाज हेलीकॉप्टर माउंटेड नाग मिसाइल। दूसरा था नमिका। नमिका जो ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे ट्रक्स पे आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्चेस लगे रहते हैं, तो वैसे ही ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है उसको। ये 2 वेरिएंट है नाग मिसाइल के, हेलिना और नमिका। नेक्स्ट अग्नि 5 जो है, ये एक आकाश जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर अग्नि 5 यूजेस अ 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन। तो थोड़ा सा ये वाला याद रख लेना, ऑल्दो प्रीलिम्स के अंदर काफी सालों से डिफेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट मेंस में रिसेंटली पूछ लिया था S-400 के बारे में 2021 के पेपर में। सो यू नेवर नो इस टाइप की डिटेल कब आपके काम आ जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना। अग्नि 5 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है, क्रूशियल टू इंडियाज डिफेंस। अग्नि 5 and 3,500 kilometer range K4 nuclear submarine launch ballistic missile are the spearhead of India's nuclear triad. It is in the line with India's minimum credible deterrence doctrine that highlights no first use. So कोई explain करेगा what is this no first use? क्या है ये no first use? इंडिया का Will be डॉक्ट्रिन। only हाँ सर, गो ऑन। will be only using it when the other side attacks first, not before. Attack with what? In the nuclear option. So सिर्फ न्यूक्लियर ही करेगा तभी अटैक कर सकते हैं। बाकी लोग एक सेकेंड सर, बाकी लोग जो सेशन के अंदर सुनने आए हैं, गाइस आप लोग भी अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो इफ यू आर विलिंग टू गिव एनी इनपुट, ठीक है? तो अगर किसी के पास हो तो प्लीज बोल देना। हाँ सर, बताइए, और किसी अटैक में भी यूज कर सकते हैं क्या? So like biological when use सकते हैं again. आई थिंक सैंडलवुड सर आपका थोड़ा माइक का इश्यू है, सो इफ यू कैन लॉग इन अगेन ठीक रहेगा। या एंड आई थिंक जो बात कह रहे थे सर वो ठीक थी, बिकॉज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सिर्फ न्यूक्लियर वेपन नहीं होता, वहां पे केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन भी होते हैं। सो अगर इंडिया के ऊपर इनसे भी अगर कोई इस्तेमाल करता है केमिकल वेपन या कोई बायोलॉजिकल वेपन अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन, तो उस केस में भी इंडिया कैन रिटेलिएट विद अ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है? सो दिस इज द इंडियाज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ये चाइना का पहले था पॉलिसी और इंडिया ने भी वही अडॉप्ट किया, ताकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको ये बताया जा सके कि इंडिया इज अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन, ठीक है? सो ये इसके पीछे इंटेंट था। और नो फर्स्ट यूज रखने का मतलब उसके पीछे एक और डॉक्ट्रिन या पॉलिसी जुड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं मिनिमम
क्रेडिबल डिटरेंट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इतना न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए जिससे हम पे अगर कोई हमला करता है तो उसको इतनी श्योरिटी रहे कि उसको भी उतना उससे ज्यादा भयंकर जो है न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जिसे मैड भी बोला जाता है कि मैड जो है वो एक डॉक्ट्रिन है कि आपको भी उतना ही डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो जो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस है इसके अंदर एक और चीज है कि आपके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होना चाहिए। सेकेंड स्ट्राइक मतलब कि आपके पास पहला स्ट्राइक हो गया, उसके बाद भी आपके पास ऐसी हालत है कि आप वापस अटैक कर सकते हो। सो मैड जो है, जिसको म्यूचुअल अस्योर्ड डिस्ट्रक्शन हम बोलते हैं, कि अगर आपने हम पे हमला किया तो आप भी रेडी रहो कि उतना ही या उससे भयंकर हमला आप झेलोगे। सो मैड, नो फर्स्ट यूज और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। ठीक है, तो आई होप इनके मीनिंग क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, अब ये इनके अलग अलग रेंजेस है तो उतना अपने काम का नहीं है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिसाइल, दैट इज ब्रह्मोस। सो इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली फायर्ड एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस। अब BrahMos, as you all know, is a joint venture between India and Russia, derived from the name of the two rivers, Brahmaputra and Moskova. So this BrahMos missile can be launched from land, air, sea, and underwater. And it was originally capped at 290 km as per the obligation of MTCR. Following India's entry into MTCR, it was decided that its range would be extended to 450 kilometers and 600 kilometers at later stage. So this BrahMos missile, अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा है, इसके अलावा कोई और इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता है? What are the characteristics of this BrahMos missile या फीचर्स? Anyone? ठीक है, ये एक तो याद रखना सुपरसोनिक मिसाइल है और दूसरा क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल की खासियत ये होती है कि इट कैन चेंज डायरेक्शन ड्यूरिंग द पाथ, अनलाइक अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है? पैराबोलिक पाथ होता है कि जैसे जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसी डायरेक्शन में नीचे गिर जाएगा, लेकिन क्रूज मिसाइल अपना पाथ जो चेंज कर सकती है। सो दैट्स सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो ब्रह्मोस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वगीर। तो एज यू नो प्रोजेक्ट 75 कई बार यूपीएससी ने इसको मेंस आई थिंक यूपीएससी ने पूछा हुआ है इसको। तो ये प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो ये सबमरीन से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जिसके अंडर इंडिया 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना रहा है। तो इसमें ये वगीर जो है ये 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। स्कॉर्पियन जो है ये इसका जो फ्रेंच जहां से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया है इसके लिए, उन्होंने इसका नाम स्कॉर्पियन रखा हुआ था। इंडिया में ये कलवेरी क्लास जो है उसके अंदर आती है। ठीक है, इसको बनाया किसने है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सबमरीन से? इनको मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो दीज आर इंडिजिनियसली बिल्ड टेक्नोलॉजीज के लिए फ्रांस से आया है। इसमें अदर जो ग्रुप के अंदर जो और बाकी सबमरीन थी, कलावेरी, कांडेरी, खरंज, वेला एंड वागशीर। तो याद रखना 3 के नाम से है और 3 वी नाम से है। तो अभी वाली जो है वो वागीर है, इसके अलावा वी नाम से वेला और वागशीर है हमारे पास। So these submarines have capability of operating in a wide range of naval combat, including anti-warship, anti-submarine operation, surveillance and naval mine laying. ये बहुत सारे ऑपरेशन कर सकती है और अंडर वाटर रहती है, इसलिए स्टेल्थ ऑपरेशन, स्टेल्थ मतलब बिना डिटेक्ट हुए ये इजीली वर्क कर सकती है। सो याद रखना ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर हम लोगों ने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई है। तो कोई बता सकता है इंडिया के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो कौन कौन सी है, उनके क्या नाम है? एनी रफ आइडिया कि इंडिया के पास टोटल कितनी न्यूक्लियर सबमरीन है? किसी को भी कोई नंबर याद हो? 10 है क्या? नहीं सर, केवल 2 है। एक अरिहंत है और एक आईएनएस चक्रा है। आईएनएस चक्रा हैज बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया और आईएनएस अरिहंत जो है हमने इंडिजिनियसली बनाई है। ठीक है, तो ये 2 ही न्यूक्लियर सबमरीन है इंडिया के पास। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर SSBN. This serves as a
अनडिटेक्टेबल लॉन्च प्लेटफॉर्म फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। तो जो मैं बात कर रहा था सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की, कि अगर इंडिया के ऊपर कभी ऐसा हो जाता है कि कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो वहां पे हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी न्यू इन सबमरीन्स के फॉर्म में रहेगी जो कैरी कर रही होंगी ये न्यूक्लियर वेपन्स को। सो INS अरिहंत इज इंडियाज SSBN। सो ऑल्दो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन 2 है, लेकिन जो INS चक्रा जो है वो हम लोगों ने रशिया से जो है वो लीज पर ली है और उसको डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में हम लोग यूज नहीं कर सकते। उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स रहते हैं कि किस किस सिचुएशन में आप उसे यूज नहीं करोगे। सो इसलिए इंडिया के पास ये INS अरिहंत जो है ये सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह काम करती है, कि अगर जरूरत पड़ती है कि इंडिया को कभी न्यूक्लियर अटैक करना पड़ रहा है तो INS अरिहंत भी उसमें एक रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। So this is a nuclear powered attack submarine armed with non-nuclear weapon. So ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। जब हमने INS अरिहंत देखी, ऑल्दो वो न्यूक्लियर पावर्ड है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल भी है जो कि न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। लेकिन जब हम कह रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, उसका मतलब है कि उसको चलाने में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हो रहा है, ना कि डीजल इंजन का, और उसके अंदर नॉन न्यूक्लियर वेपन से अटैक होता है, जैसे कि टॉर्पीडोज होती हैं। टॉर्पीडोज एक टाइप की मिसाइल्स होती है जो कि सबमरीन्स में लगी होती है। सो ओनली 6 countries currently have nuclear powered submarines. That it includes UK, US, China, Russia, India and France. ठीक है। नेक्स्ट, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, जो हमारा प्रोजेक्ट 75 है। इसके अंदर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही बनी है और इंडिया के पास इसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं। मतलब क्लास इज लाइक अ ग्रुप ऑफ सबमरीन्स विद अ सिमिलर क्लासिफिकेशन, जैसे सिंधु घोष क्लास हो गया, कालवेरी क्लास हो गया। ठीक है, ये कुछ क्लासिफिकेशन है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के। अब इसमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में एक सिस्टम बनाया था DRDO कॉल्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है कि जो न्यूक्लियर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं उनमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि उनको सरफेस पे आना पड़ता है बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि जो डीजल इलेक्ट्रिक जो इंजन होता है उसमें काफी सारा जो पोल्यूशन होता है, क्योंकि डीजल जब जलता है तो उसमें से एग्जॉस्ट निकलता है। उन एग्जॉस्ट को रिलीज करने के लिए और बैटरीज को चार्ज करने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। तो इसलिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स थोड़ी सी कम स्टेल्थ है, बिकॉज उन्हें एक पॉइंट पे सरफेस पे आना पड़ेगा। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती है इनको सरफेस पे आने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशन कर सकते हैं अंडर द वाटर ओनली। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हम लोगों ने बनाई है और इसमें ये इश्यू है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए DRDO ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है, जिसके थ्रू अब डीजल इलेक्ट्रिक इंजन सबमरीन्स को फ्रीक्वेंटली सरफेस पे आने की जरूरत नहीं है टू रिचार्ज देयर बैटरी। ये काम जो है अंडर वाटर हो जाएगा, यानी इनके जो अंडर वाटर रहने की कैपेबिलिटी है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की, ये बढ़ जाएगी। तो याद रखना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या है। नेक्स्ट, कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट में Arnala is first of the 8 indigenously built anti-submarine warfare shallow watercraft। तो ये एक वाटरक्राफ्ट है जो कि लॉन्च किया गया है ताकि स्पेसिफिकली जो सबमरीन है उनको टैकल किया जा सके। जैसे हमने देखा है कि चाइना का जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है इंडियन ओशन में, और हम लोग देख रहे हैं उसकी सबमरीन फ्रीक्वेंटली इंडियन ओशन में दिख जा रही है हम लोगों को। सो इंडिया के पास अभी इतनी सबमरीन्स नहीं है कि वो डायरेक्टली हेड टू हेड जा सके चाइना के साथ। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ ऐसे इनोवेटिव सोल्यूशन, जैसे अभी ये वाटरक्राफ्ट बनाया है, तो ये छोटा सा एक वाटरक्राफ्ट है जो कि जो सबमरीन्स है उनको टारगेट कर सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। INS मार्मागोवा। INS Indian naval ship Marmagova was commissioned into Indian Navy. So Marmagova is second warship of P-15 class of stealth guided missile destroyer। तो stealth हमने लोगों ने जैसे बात किया, जो इजीली रेडार या सोनार से ना डिटेक्ट हो, उसको हम stealth बोलते हैं। तो चुपके से जो ऑपरेशन होते हैं उसमें ये काम आ सकता है। ठीक है, कोई भी सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट करना। So this is equipped with surface to surface and surface to air missile.
अब इस टाइप के शिप्स में क्या क्या सामान लगा है उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही यूनिक चीज लगी हो, ठीक है। सो इसमें से हम आगे चलते हैं। बस इतना बताना चाहिए, आईएनएस मार्मागोवा जो है वो एक डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। नेक्स्ट, मरीन कमांडोज मार्कोस। So in a historic move, India's Navy to allow women to opt for special forces. So this woman can choose to become marine commandos only if eligibility criteria as described by the Indian Navy. It will be available to both sailors and female officers joining as Agniveer. So Marcos जो थी, these were raised in 1987 and these are known as to be the most effective special forces in the world, ठीक है। ऐसे इन्होंने इस टाइप के बहुत डिफरेंट ऑपरेशंस किए हैं जिसके थ्रू दुनिया भी अब इनका जो लो है वो मानती है। सो बहुत सारे ऑपरेशन में हमने यूज किया, जैसे ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ठीक है। सो कोई बता सकता है एयरफोर्स में जो स्पेशल फोर्सेज है उनका क्या नाम है? एनीबडी? ठीक है, तो गरुड़ कमांडोज का कभी नाम सुना है? वो जो एयरफोर्स है उसकी स्पेशल फोर्सेस है। तो थोड़ी सी बेसिक डिटेल भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स जो परेड वगैरह होती है तो उसमें भी आता ही है इनके बारे में से, तो थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरसाइजेज न्यूज। तो पहला है काज इन 2022। दिस इज इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज that was instituted in 2016 as exercises Prabal Dostak and was renamed as exercise Kazin, ठीक है। तो नाम से ही पता लग जाएगा किस किस के बीच में है। नेक्स्ट, सूर्य किरण, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इट हैपेंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल और इसका ये 16th एडिशन। सॉरी गाइस। सो सूर्य किरण ये इंडिया और नेपाल के बीच में 16th एडिशन है। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे नेबर्स के साथ तो ये एक्सरसाइज भी आप वहां पे कोट कर सकते हो। नेक्स्ट, अग्नि वॉरियर, दिस हैपेंस टू बी अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी। कॉर्पेट, तो कॉर्पेट बार बार आती रहती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट कंट्रीज के साथ हम ये कॉर्पेट एक्सरसाइज करते रहते हैं, नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS. So Haryana Police was awarded the first rank among all major state police in implementation of CCTNS. तो CCTNS एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। सो CCTNS के थ्रू हम लोग एम कर रहे हैं जो पुलिसिंग का जो एंड से जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जैसे कि चार्जशीट फाइलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब डायरेक्टली जुडिशरी से इंटीग्रेट हो जाएंगी। यानी जो पुलिस को जो भी वर्क करना पड़ता था कि केस से रिलेटेड, वो सारा का सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा और ये जो पूरा केस फाइल है किसी भी केस की, डायरेक्टली जो भी कंसर्न जज रहेगा, जो भी सुन रहा होगा उस केस के अंदर, उनके पास डायरेक्टली चल जाएगा, ठीक है। सो अंडर दिस CCTNS ये जो हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा पुलिस थी, उन्होंने 100% FIRs आर बीइंग डायरेक्टली रजिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू CCTNS। तो ये था CCTNS के बारे में। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो आप। एनीबडी? ठीक है, तो विद दैट वी आर डन विद दिस टुडेज पार्ट।